موٹروے M4 فیصلاباد تا شورکوٹ تک بند، M4 کو عبدالحکیم تا شورکوٹ تک بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سمیت اہم قومی شاہراہوں پر دھند کا راج۔ موٹروے M4 کو فیصل آباد تا شورکوٹ تک بند کر دیا گیا، M4 کو عبدالحکیم تا شورکوٹ تک بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سمیت اہم قومی شاہراہوں پر دھند کا راج۔ موٹروے M4 فیصل آباد تا شورکوٹ تک بند، M4 کو عبدالحکیم تا شورکوٹ تک بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر قرار دے دی گئی ہے۔ محض 8 روپے کی کمی نے شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ پیٹرول کی قیمت میں مزید 40 سے 50 روپے کمی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ نگراں حکومت کی پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی کمی، نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے مقرر کر دی۔ فیصل آباد کے شہری پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی پر ناخوش، حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں مزید 40 سے 50 روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ نے جو پیٹرول کا ریٹ 8 روپے کم کیا ہے نا، یہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، لولی پاپ دیا ہے۔ اس سے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی، حکومت کو چاہیے کہ مزید جو ہے نا اقدامات کیے جائے۔ کوئی 30-40 روپے سستا ہو تو پھر ہی عوام کو ریلیف ملے گا، ایسے تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی خوشائند ہے، مگر قیمت ابھی عالمی منڈی کے مطابق نہیں ہے۔ حکومت جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے وقت تگڑا اضافہ کرتی ہے، اسی طرح سے کم بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو فی الحال یہی سوچاں کہ ساڈے تے ظلم ہو رہا ہے، 8 روپے کو تک بندا وے، کتنے پیٹرول سستا سی تے کتنے لیا کے مہنگا کر کے ہن ساڈے تے 8 روپے دا اپنا پیٹرول گھٹا کے تے ساڈے تے یعنی کہ کی کرنا چاہتے ہیں، سانوں کی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ معمولی کمی سے نہ تو مہنگائی کم ہوگی اور نہ کرایوں پر فرق پڑے گا۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی اور حقیقی معنوں میں ریلیف عوام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر محمد علی نارو کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے لیٹر فی کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کا کرایہ کم کرنے سے انکار، مسافر اب بھی پرانے کرائے بھرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول مزید سستا، مگر ڈیزل کی قیمت کم نہ ہونے پر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں کمی نہیں کی گئی۔ تیل سستا ہونے کے ثمرات سے مسافر محروم، بولے مہنگائی کے دور میں عوام کو جتنا ہو سکے ریلیف ملنا چاہیے۔ ڈیزل سستا ہوگا تو بسوں کے کرائے بھی کم ہوں گے۔ نگران وفاقی حکومت ڈیزل کی قیمت بھی کم کرے۔ اور راب اختیار سے ہماری گزارش ہے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمت کم ہو یا اسی طرح آپ ڈیزل کی قیمت میں کمی، کیونکہ موسٹلی جو گاڑیاں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ڈیزل پہ ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ضروری ہے اور پبلک کے لیے بھی کہ آپ ڈیزل کی قیمت بھی کم کریں۔ بسوں ویگنوں کے کرائے آسمان پر پہنچ چکے ہیں، حکومت اس کا نوٹس لے تاکہ غریب عوام کو سستی سواری میسر ہو سکے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ بلڈ پریشر اور دل کے مریض خبردار، اب انڈے ہی نہیں انڈوں کی قیمت بھی بی پی بڑھائے گی۔ برائلر کی بھی اونچی اڑان، چکن 7 دن میں 70 روپے مہنگا، ایک مرتبہ پھر 650 کی حد عبور کر گیا، قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، محمد علی ٹاؤن میں کھانے کے اوقات میں گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ محمد علی ٹاؤن میں کھانے کے اوقات میں گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ شہری گھر کے کھانے سے محروم، کہتے ہیں گیس آتی نہیں ہے، بھاری برکم بل بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کو دفنانے جا رہے ہیں، یہ گیس تو بھیجنی نہیں ہے، اس لیے ہم چولہا ہی دفنائیں، جب گیس والے آئیں گے تو ان کو بھی دفنا دیں گے۔ علاقہ مکینوں کی محکمہ سوئی گیس کے خلاف نعرے بازی، کہا گیس کی بندش کے باعث چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، گھر میں سوئی گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے کھانا نہیں بنتا، روز بازار سے کھانا خریدنا جیب پر بھاری پڑنے لگا ہے۔ گیس تو آ نہیں رہی، بل زبردست آ رہا ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے، نہ روٹی پکتی ہے نہ سالن پکتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں، ہم خود بھی پریشان ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبر کر کے رکھ دیا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے گیس کی بندش پر ایکشن لینے اور جامع حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں سوئی گیس پریشر کم، محکمہ سوئی گیس کی کارروائیاں، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں گیس کی بندش اور پریشر کم ہونے کی شکایات میں اضافہ ہونے لگا۔ پریشر کم ہونے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوئی ناردرن حکام کی کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع۔ انچارج چنیوٹ برانچ اقرار الحسن کہتے ہیں کسی کو کمپریسر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ روزانہ کارروائیوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، خلاف ورزی پر 5000 جرمانہ ہوگا، 6 ماہ تک دوبارہ میٹر نہیں لگے گا۔ ہم نے ٹیمیں تشکیل دے رہی ہیں کیونکہ پورے شہر میں ہمارے لو پریشر کی کمپلین آ رہی ہیں، کنزیومر ویلیو ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم لوگ بھیج رہے ہیں لوگوں کو
जितने भी कंज्यूमर हैं उनके घर जा रहे हैं, जितने भी हैं उन्होंने तकरीबन मैं कहता हूँ 5% 10% उन्होंने लगाए हुए कंप्रेसर। उससे क्या होता है कि प्रेशर लो हो जाता है, एक घर में होता है तो पूरी गली के जो मीटर है वहाँ लो प्रेशर का मसला बन जाता है। कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिससे घरेलू सार्फिन को यकसा तौर पर गैस की बरामदी मुमकिन नहीं होती। शहरियों को चाहिए कि कंप्रेसर का इस्तेमाल हरगिज ना करें ताकि बाकी लोग भी मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ उमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। सुई गैस लोड शेडिंग, मुतबादिल ईंधन लकड़ी और कोयले की मांग। लकड़ी 1400 रुपए, कोयला 70 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में सर्दी की लहर बढ़ते ही सुई गैस ने अवाम से मुंह मोड़ लिया। शहरी इलाकों में 8 घंटे से जायद लोड शेडिंग होने लगी। महंगे दामों मिलने वाली लकड़ियों और कोयले ने अवाम की माली मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी गैस लोड शेडिंग से परेशान, कहते हैं घरों में गैस आती नहीं। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लकड़ी और कोयला फरोख्त करने वालों ने कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। लकड़ी 1400 रुपए मन, कोयला 70 से 120 रुपए किलो हो चुका है। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोयला और लकड़ी लेके काम चलाना पड़ता है। कोयला 80 रुपए किलो था, अब 120 रुपए किलो मिल रहा है। इस तरह हर चीज़ के दाम भी बढ़ा दिए। जैसे गैस बंद होती है, साथ ही लकड़ी कोयले के दाम भी बढ़े हुए हैं। गैस लियांदी है सिलेंडर ते जम जाती है, जलेबियां लाइया मैं कोयले पका के। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि घरों में खाना पकाने में आसानी हो। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आम इंतखाबात 2024, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमातों में शामिल उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं होंगे। इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमातों में शामिल इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त 166 सियासी जमात रजिस्टर्ड हैं। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने वाली 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया था। आम इंतखाबात उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने छुपाई के लिए बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि वक्त कम है और बैलेट पेपर्स की छुपाई में भी वक्त लगेगा, इसलिए जो निशानात जारी किए जा चुके हैं वही बरकरार रहेंगे और इनमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को 3 रोज कबल इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए थे। ताहम जिन उम्मीदवारों ने निशानात के खिलाफ अदालतों से रजू कर रखा है, अगर उन केसेस में मुतल्लिका उम्मीदवारों के निशानात तब्दीली के हक में फैसला आ जाता है तो अदालती अहकामात पर वहां निशान तब्दील हो सकेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां डीपीओ चिन्योट ने मजीद नफरी की मांग ली। जिला में 21 कैटेगरी ए, 42 बी और 549 कैटेगरी सी के पोलिंग स्टेशन कायम किए जा चुके हैं। इलेक्शन ड्यूटी के SOPs के मुताबिक एक कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन पर 6, बी पर 5 और सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन पर 4 एहलकार तैनात होंगे। जिला में 1150 एहलकार मौजूद, 2692 एहलकारों की कमी है। तकरीबन 571 आर्मी जवानों को भी तैनात करने की सिफारिश की गई है। आम इंतखाबात के हवाले से फैसलाबाद में प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग, इलेक्शन ट्रेनिंग 1 फरवरी तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 4 जगह ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2 रोज ट्रेनिंग पर प्रिजाइडिंग अफसर के लिए लाजमी करार। ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। इंतखाबी मौसम जंग में DRO अब्दुल्ला खुरम न्याजी की ज़ेर सदारत इजलास, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और रिटर्निंग अफसरान की शिरकत। 10 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीम और पोलिंग स्टेशन पर ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्कीम से मुतल्लिका शिकायत सुनी। रिटर्निंग अफसरान से ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया गया। फैसलाबाद में जनरल इलेक्शन के लिए पोलिंग स्कीम फिर तब्दील कर दी गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम और सिक्योरिटी प्लान फिर तब्दील। हसास और कम हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद कम कर दी गई। हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 609 से कम करके 475 कर दी गई है। बी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस की तादाद 2012 से कम करके 1695 कर दी गई। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तादाद 1030 से बढ़ाकर 1517 कर दी गई है। पुलिस की नफरी 15000 से कम करके 13000 के करीब तैनात की जाएगी। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 3687 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। फैसलाबाद के पास 9152 एहलकार और अफसरान मौजूद हैं। 4000 नफरी की कमी को ट्रैफिक वार्डन्स पेट्रोलिंग पुलिस से पूरी करने का फैसला किया गया है। नफरी की कमी को पूरा करने के लिए 2 दिन के लिए रिटायर्ड पुलिस एहलकारों की खिदमात हासिल करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पुरानी फीस पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मोहलत खत्म। पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस की नई फीस का इत्तलाक हो गया।
पुरानी फीस पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मोहलत खत्म। पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस की नई फीस का इतलाक कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई फीस 5 साल की बजाय सालाना बुनियादों पर वसूल की जाएगी। हर कैटेगरी के लिए लर्निंग लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। मोटरसाइकिल के कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की सालाना 500 रुपए फीस वसूल की जाएगी। कार के कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की सालाना फीस 1800 रुपए वसूल की जाएगी। LTV और HTV के लिए सालाना फीस 2000 रुपए कर दी गई। कमर्शियल ट्रैक्टर के लिए सालाना फीस 1500 रुपए मुकर्रर की गई है। ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम को नई फीसों पर अपडेट करने के लिए फैसलाबाद में आज ड्राइविंग लाइसेंस फराहम नहीं किए गए। साथ लाइसेंस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। डेंगू से निपटने के लिए पेश किए इक़दामात, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। डेंगू का खदशा, महकमा सेहत डेंगू से निपटने के लिए मुतहरिक फैसलाबाद के अस्पतालों में बेड्स मुख्तस कर दिए। जिला के अस्पतालों में 44 बेड मुख्तस किए गए हैं। एलाइड अस्पताल 1 और 2 में 10-10 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद 4, जनरल अस्पताल सबनाबाद में 4 बेड्स मुख्तस किए गए। जड़ावाला और चकझूरा की तहसील अस्पतालों में 4-4 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। समंदरी 3, तानवाला 3, नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में 2 बेड्स मुख्तस किए गए। साल की अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब 68 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की रीवैम्पिंग के लिए 70 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत 42वां इजलास हुआ। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के क़याम के लिए 78 करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए गए। मजमूई तौर पर 10 तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर किए गए। वज़ीर आला के अवाम दोस्त विजन पर अमल दरामद, जिला चिन्योट की गुड गवर्नेंस पंजाब भर में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम। जिला चिन्योट गुड गवर्नेंस में पंजाब भर में पहले नंबर पर आ गया। 21 नुकात पर मुश्तमिल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस पोर्टल के मुताबिक इंक्रोचमेंट, स्ट्रीट लाइट, प्राइस कंट्रोल, जुर्मानों, साफ पानी की फराहमी को बेहतर किया गया। सफाई की सूरत हाल, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ग्रीन बेल्ट, अस्पतालों की सफाई को बेहतर किया गया। बस स्टैंड बेहतर, वॉल चौकिंग, मिनी पेट्रोल पंप्स, जाली आमलों का भी खात्मा किया गया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से 21 पॉइंट थे जो गुड गवर्नेंस के तौर पे डिस्ट्रिक्ट को दिए गए थे, जिन पे अमल दरामद करवाना था। तो उसमें जो है ये एंटी क्रोचमेंट हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, उसके अलावा ये बाकी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो गई और बहुत सारी इस तरह 21 पॉइंट्स हैं। तो इनमें जो स्पेशल ब्रांच है वो पॉइंट्स को कोई भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसको इंडिकेट करती है ऐप के थ्रू ऑनलाइन। चिन्योट में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग, अतायत के साथ साथ आवारा कुत्तों का भी खात्मा किया गया। मौसूल होने वाली अवामी शिकायत को फौरी हल कराया गया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार मोहम्मद, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का पहली बार PhD स्कॉलरशिप का इजरा कर दिया गया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के MPhil और MS डिग्री होल्डर्स को स्कॉलरशिप पर PhD करने का मौका मिलेगा। सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल। स्कॉलरशिप लेटर जारी होने के बाद सोशल साइंसेज के कामयाब उम्मीदवारों को 50,000 रुपए महाना मिलेंगे। साइंसेज के कामयाब स्कॉलर्स को 1 लाख रुपए महाना मिलेगा। मर्द उम्मीदवार के लिए उम्र की हद 40 साल जबकि खवातीन के लिए 45 साल मुकर्रर। उम्मीदवार की किसी डिग्री में 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए। PHEC ने 31 जनवरी तक दरखास्तें मांग ली। खाना कल्चर में तब्दीली के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा इक़दाम, तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाना कल्चर बदल डाला। 15 पर शिकायत, तहरीरी दरखास्त के बगैर FIR होगी। पुलिस हेल्पलाइन 15 पर की जाने वाली कॉल पर ही E-टैग नंबर जारी किया जाएगा। पंजाब भर में हर 15 कॉल की फौरी E-टैगिंग नंबर जारी किया जाएगा। कॉल पर ही फ्रंट डेस्क के जरिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इंदराज कर लिया जाएगा। शिकायत करने वाले शहरी को तफसील बताने के लिए थाने जाना पड़ेगा, लेकिन कोई तहरीरी दरखास्त नहीं देना पड़ेगी। इंक्वायरी ऑफिसर शिकायत के दुरुस्त होने पर ऑनलाइन ही तमाम हिकायत दर्ज करेगा। कॉलर की दुरुस्त शिकायत पर SOPs के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक 15 की कॉल पर E-टैग से शहरियों के मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत का इजाला हो सकेगा। एलाइड अस्पताल 1 फैसलाबाद में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज लेकिन सहूलियात का फुकदान है। अलाइड अस्पताल 1 को फ्राहम करदा वाहद MRI मशीन खराब, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज की चांदी, गरीब और मुस्तहिक मरीज लुटने लगे। MRI कराने आए मरीज और तीमारदार कहते हैं प्राइवेट अस्पताल से MRI 16,000 रुपए की हो रही है जो पहुँच से बाहर है। दूसरे मरीज ने कहा सरगोदा से MRI कराने आए हैं मगर मशीन खराब है। गोजरा से बेटी की MRI कराने आए वालिद ने कहा कि MRI बुनियादी टेस्ट बन चुका है, सरकारी अस्पताल में इसकी मशीन जरूरी है।
MRI डॉक्टरों ने बोला है करा के लाने का फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल से, तो इधर आए हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ना मशीन ख़राब है काफ़ी दिनों से। हमें पिछले मंगल का टाइम दिया था, पिछले मंगल हमने टाइम लिया था, तो कह रहे थे मंगल वाले दिन आप आ जाना, तो इंशाल्लाह आपको टाइम मिल जाएगा। तो 16 तारीख और मंगल वाले दिन हम आ गए हैं, तो अब ये कह रहे हैं मशीन ख़राब है हमारी।